Today, dear growers, it's not just a waste of time. I believe you have taken a Oka district. We'd like to welcome you to our appreciation in the usual manner. The laborers. Thank you for the welcome. And I'm very pleased to be here at this beautiful temple. It's a good way to start the journey for consultation. So I appreciate all your time. मैं आप लोगों को विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप अपने समय को निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं और ये विशेष जो विचार गोष्ठी है ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि we had a summit in Suba, a very successful economic summit where we had various thematic groups. Sugar industry featured very prominently in those discussions. But I also know that a lot of people who wanted to be at the summit could not make it there. So this is just an attempt to provide another opportunity for discussion and consultation beyond what we had in Suba. There's been a lot of discussion as part of the Fiscal Review Committee, which we appointed, which was not there for the last 15 or 16 years. We did not have economic summits, which we started as a new government. And so this is not a countrywide consultation. We just want to come to the West and meet some key stakeholders, such as the sugarcane farmers. One thing that, as Sunil said very clearly, that since 2006, the sugar industry has just gone down. The amount of production has gone down. We understand the problems. The rail network is almost dead. The cost of production has continued to increase. And there's been a lot of other issues. In 2006, we had the European Union funding, which was already agreed to. Because we had the coup in 2006, we lost that funding. Almost like $300 million, which was supposed to go to the farmers, which was supposed to go to the mills, and also supporting farmers for their alternative livelihood. That was lost. And since then, the production has continued to go down. The new government, with the new sugar minister, Mr. Charanjit Singh, we are now trying to focus on making sure that we bring the sugar industry back, make appropriate changes, because sugar, as we were told, is still very, very important, looking after the interest of our rural communities, but also contributing significantly to the overall economy. We have made sure that this season, or the payment for the last season, the cane payment so far is already over $85.
Uh, there were shortfalls in the previous years. Close to about $13 million was not paid to the farmers because the actual price of $85 minimum guaranteed price, which some of us talked about, since 2014, was not fully paid. So you would have, the last payment was $24. The recent one is $7.07, 11 cents, and you got one payment left, which is the washout payment. But I would like to hear from you. मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि क्या विशेष समस्या है। काफी जो समस्या है वो हमें पता है. We know a lot of the problems that exist in the industry. One thing that we want to do is to bring back the Sugarcane Growers Council. Elected Sugarcane Growers Council. And we will determine the timing when that will be done. Because we believe that the farmers should have the direct representation. या आप लोग अपने लोगों को चुनकर वहां भेजो ताकि जो ग्रोवर्स काउंसिल हो वो आपके चुने हुए लोग हैं जो जाकर आपकी जो समस्या है, किसान की जो समस्या है, उसके बारे में बात कर सकें. तो ये जो नॉन इलेक्टेड टाउन काउंसिलर्स, ग्रोवर्स काउंसिलर्स, इसको हम बदलेंगे. क्योंकि अगर ताकत आपके हाथ में नहीं है, सब ताकत आप सरकार को दे दो, तो सरकार ही डिसाइड करेगा क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. इसीलिए हमारी जो नई कोलिजन सरकार है, हम चाहते हैं कि लोगों की जो ताकत है उनको वापस दिया जाए और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही इंडस्ट्री का जो स्थिति है, जो समस्या है, उसको सुलझाने के लिए उनके बातचीत के बाद किया जाए. तो क्योंकि ये जरूरी है और ये ठीक चल रहा था, तो ये बात मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि समय से हम ग्रोवर्स काउंसिल की जो इलेक्शन है उसको करवाएंगे. टाउन काउंसिल की इलेक्शन भी होगी, इसका निर्णय सरकार ने ले लिया है, ताकि ताकत जो है वो लोगों के हाथ में, जो लोकल गवर्नमेंट, ग्रोवर्स काउंसिलर्स, ये सब लौट कर उनके पास जाए. तो एक बार फिर मैं आप लोगों को विशेष धन्यवाद देता हूं और मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं. धन्यवाद. So please, if you have any questions or any suggestions, I want to listen to you. I'm not here to give you a lecture. I'm here to listen to you. Thank you. मैं हिंदी में बोलूँगा. पहला तो ये समस्या हमारे है, तो अभी नई है, जो इनकम रिटर्न बनाने वाली की समस्या है. जो मैंने मार्च में या फरवरी में गया था इनकम रिटर्न बनाने के लिए. हेलो. तो वो लोग ने बताया है कि मुझको कि अभी इनकम रिटर्न प्रीवियस गवर्नमेंट ने अभी एंटर नहीं किया कंप्यूटर में. जब दूसरी बार जब मैंने गया तो वो बताया है कि जाके वो कोई पैकेट में से कुछ पिन नंबर कुछ लिखाना होगा और आपको टच स्क्रीन में बनाना होगा. तो मैंने तो दिखाया, मेरा तो ये फ़ोन है, इसमें क्या बन नहीं सकता. मैं तो इस फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहता है ना. और बोल रहा है कोई लड़का का फ़ोन लेके आओ. मेरा लड़का तो सिंगल रजिस्ट्री में इन्वॉल्व है नहीं, क्यों मैं इसके भी इन्वॉल्व करूँगा. जब मैं मर जाऊँगा तो सिर्फ आने चाहता तो आएगा. तो ऐसे समस्या है, तो इसके पीछे मुझे जाके एक फ़ोन खरीदना पड़ेगा. ऐसे बात अभी ये सबसे बड़ी समस्या अभी किसान के ऊपर है. So for your information, this online portal has just started. This is a new concept. Previously, we had been assisting the growers with their income tax return, which was all done manually, and it was done free of cost at our office. But it was a voluntary thing. Whichever grower came to our office, right, we assisted them.
because their income threshold is, most of the growers is below 30,000. On top of that, when this new portal was implemented, and for the current year, it was just open at the beginning of May. So we are facing some challenges because there are a number of challenges in regards to that, since it's a new thing, and there are certain information that is not updated in the FRCS portal as well. So we are in regular contact with FRCS, trying to liaise with them and trying to rectify some of those issues. But yeah, definitely there are challenges that we are also facing, and it has been highlighted to FRCS. The Growers Council, you guys should be able to sort this out with FRCS. I mean, if the farmers are having problems with this tax return, आप लोग के पास Growers Council के पास database है, they should have a list of farmers. They know how much they produce, whether they meet the threshold or not. They should be able to help. So, note that down. So we look at FRCS and how they can work with the Growers Council. I mean, these are things that can be sorted out. It is not something that farmers should be running around and having all these kind of problems to just do simple tax return. Most of them earn less than 30,000 anyway. सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि आपका यहाँ पर पदार्पण हुआ है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और ग्रोस फंड, ग्रोस काउंसिल, जितने भी आबादकारी आए हुए सभी को मैं अपने किसान की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ में खुशी के साथ साथ में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी दुख की बात मैं कहूँगा कि बहुत कम किसान हैं, कि शायद पहली बार होगा कि इस मंदिर पर इतना कम किसान आए हुए हैं। तो इसका वजह आज पहला रोज़ गन्ना का था, लोग व्यस्त थे ज़्यादा गन्ना काटने में, तो ये भी एक वजह हो सका। अगर 2 रोज़ पहले भी आते तो बहुत लोग होते। तो वह स्कूल पर मालूम होगा जो नया भाई साहब यहाँ सामने बैठे हुए बहुत ज़्यादा लोग थे। तो वैसे तो मैं साफ कह देना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि कोई बात भी दिल में नहीं रखना। मिनिस्टर जो बन जाते हैं, जब हो जाते हैं मिनिस्टर तो समय नहीं मिलता है, लेकिन ये धन्यवाद मैं शुगर मिनिस्टर को भी देना चाहूँगा। दो बार वो भ्रमण कर चुके हैं और व्यस्त होते हुए आप भी आ चुके। आपका कहना है कि किसानों का प्रॉब्लम, मैं काफ़ी उम्र का हो चुका हूँ, किसानों का प्रॉब्लम मैं नहीं सोचता कि ख़त्म होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो सकता है। और वो ख़त्म हो है कि जैसे अभी गन्ना की कटाई शुरू आज से है, दुबू सेक्टर के मैं बताना चाहूँगा कि दुबू सेक्टर में अभी जो कि दुबू में 187 किसान हैं और नंडाला में 57 किसान। रास्ता अभी सिर्फ नंडाला में बन रहा, जो कि 2 हफ्ता से बंद था, आज शुरू हुआ। एक ही ग्रेडा है। तो मुझे लगता है कि जैसे पिछले वर्ष हुआ था, मैंने तुबा स्कूल पर बताया था, 2 हफ्ता बचा था मिल बंद होने में, तब रास्ता बना था। तो वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है हम किसानों के लिए। कई जगह पर गन्ना नहीं कट सकेगा क्योंकि बिहान से हमारा हार्वेस्टर भी शुरू करेगा। तो सॉरी, उससे पहले जो सुनील ने कहा था कि अपना फार्म नंबर बता 5081 दुबू सेक्टर तारा सिंह, मैं LTC PA का सिंगटो का डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन हूँ। तो ये सब समस्या है किसानों के पास। अभी हम लोग बजट की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए ये केवल शुगर इंडस्ट्री पर विचार करने की सभा नहीं है। तो इस पर आप लोग बजट पर भी क्या हम कर सकते हैं या क्या और समस्या है, इस पर भी हम सुनना चाहते हैं। केन एक्सेस रोड जो है वो बड़ी समस्या, पूरे रास्ते की हालत और किस तरह से अभी तक काम हो रहा था उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो अभी FRA है, केन एक्सेस रोड, FSC, अलग अलग संस्था है। हम अभी विचार कर रहे हैं बजट बनाने में कि PWD को हम फिर से लाएंगे। FRA भी रहेगा, PWD जो देहात में रूरल रोड से, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले वर्ष में जो साल का पूरा बजट होता है, फर्स्ट
अगस्त से 31 जुलाई तक, 31 दिसंबर तक FRI का पूरा बजट खत्म हो गया था। 6 महीने में पूरा साल का बजट खत्म हो गया था। तो जब नया सरकार आया तो हमने फिर और पैसा निकाला, फिजी रोड अथॉरिटी को दिया, और हम चाहते हैं कि अभी जो रास्ता का हालत बिगड़ रहा है उसको सुधारे। लेकिन अगले बजट में हम बारीकी से देख रहे हैं कि केन एक्सेस रोड के लिए कितना पैसा होना चाहिए, किस तरह से इसको हम अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पैसा बहुत बर्बाद हुआ। कहीं कहीं के पैसा का कमी नहीं था, लेकिन पैसा बर्बाद हुआ। सही तरीके से पैसा को इस्तेमाल नहीं किया गया, काम हुआ नहीं। जो रास्ता 500,000 में बनना चाहिए वो $1 मिलियन में बन रहा था, ये भी समस्या था। तो इन सब समस्याओं पर हम काबू पा रहे हैं, और अगले बजट में जो केन एक्सेस रोड है इस पर हम अच्छी तरह से ध्यान देंगे। अभी शनिवार को हम बात कर रहे थे, और केन एक्सेस रोड का जो समस्या है हमारे स्टाफ को भी पता है, तो चिंता आप नहीं कीजिए, हमें पता है। और आप सही कहा कि अगर रास्ता ठीक नहीं है, गंदा निकालने में बहुत समस्या होगी। तो धन्यवाद इसके लिए। मेरा एक और रिक्वेस्ट है, जबकि आप बजट की बात है, तो ग्रोस काउंसिल में एक स्टाफ होना बहुत ज़रूरी और है। कभी कभी हमारा 8 बजे से 11, साढ़े 11, 12 भी बज जाता है। दूसरी बात, उस दिन मैंने कहा था, उस पर काफ़ी इशू उठा, मुझे बहुत बुरा भला भी बोला गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो है वो जानता है। मैंने कहा था कि वहाँ पर एक स्टोरेज बना दो, क्योंकि दवा कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है, तो इस पर मैंने कहा था। तो इस बातों के लिए जो मैं कहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा। एक बार फिर आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकुर जी, बहुत सुंदर बात आपने कहा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ग्रोवर्स काउंसिल इलेक्टेड हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा बर्बादी शुगर इंडस्ट्री का हुआ है, क्योंकि एक तरह से आप लोगों को खरीदा गया कि थोड़ा सा हम जो लेवी है आप भर देंगे, और ग्रोवर्स काउंसिल कोई और डिसाइड करेगा कैसे काम चलेगा, सरकार डिसाइड करेगा। पहले था अलग अलग सेक्टर के आपके चुने हुए लोग थे, अगर वो काम नहीं करते थे दोबारा उनको आप चुनेंगे नहीं। उनका काम होता था कि ग्रोवर्स काउंसिल में जाकर आप लोगों का जो सही प्रतिनिधि थे वो करें, क्योंकि जब वो नहीं हुआ तो ये जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनकी समस्या नहीं है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, काम करना चाहते हैं, इनको मैं दोष नहीं दे रहा हूँ जो ग्रोवर्स काउंसिल में काम कर रहे हैं। जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा था, क्योंकि जब आपका पास प्रतिनिधि नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, आप उनके दफ्तर जाओगे, वहां पर अगर वो सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ताकत आप लोगों ने सरकार को दे दिया जो आपके पास होना चाहिए। तो पहला समस्या हम वो सीधा करेंगे, ताकि ग्रोवर्स काउंसिल में आपको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपके काउंसिलर नहीं काम करता है, आपको ग्रोवर्स काउंसिल जाने की हर समय जरूरत नहीं है। ग्रोवर्स काउंसिलर जिसको आप चुनते हो वो जाकर आपकी समस्या, ये जो फिरका की समस्या है, अलग अलग समस्या है किसान के, वो जाकर ठीक कर सकते हैं। तो ये हम ठीक करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ग्रोवर्स काउंसिल का जो स्टाफिंग सिचुएशन है उसको वो देखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, किसानों के लिए ये जो सब सुविधाएं हैं, छोटी मोटी जो सेवाएं, ये करना ज़रूरी है। तो इस पर सरकार निर्णय ले ली है। अब शुगर मंत्री ने भी आप लोगों को बताया है, हाँ एकदम होगा। और बजट में ग्रोवर्स चुनाव के लिए हम अलोकेशन करेंगे, जो वहाँ पर रहेगा कि समय से चुनाव होगा। हमारे ज़मीन और हमारे बगल में 11601, हमारा 3-4 ज़मीन ऐसे बगल ऐसे नहीं बालो, तब वहाँ पे बगल में जिंगा फार्म एक ज़मीन ले ली, लेके
जो पुराना मिनिस्टर रहा उससे बात करके ड्रेनेज हम लोग के ब्लॉक कर दी। 1979 में ड्रेनेज जो बना रहा वो बोले हमारे फार्म लोग ब्लॉक कर दी सीधा। ब्लॉक करे से हम लोग के लगभग अभी बगल बगल पड़ोसी सब लगभग 6-7 एकड़ जमीन से भर्ती हुए, जमीन गन्ना नहीं हुए। जहाँ गन्ना हमारा 100 टन होता रहा वहाँ अभी 20 टन गन्ना है। पूरा पानी भर जाए तो रुका रहे खेत में, निकले नहीं। कई बार कंप्लेन करा, लास्ट फिर महेंद्र रेड्डी भी कंप्लेन करा। महेंद्र रेड्डी बोले न्यू डेवलप वहाँ पे जिंगाल हम लोग को बंद करा, वहाँ जिंगा भी बंद हो गए, हम लोग के गन्ना खेती भी सब बंद कर दी। हमारा यही एक सुझाव है, आप लोग लैंड से बात करके जो मिनिस्टर मैप लेके आओ, सुबह जो ड्रेन रहा उसके ड्रेन हम लोग को सफा करके दे दो। ये ड्रेनेज वाला अगर आप लोग देखोगे रास्ते के किनारे, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, पहले जब पीडब्ल्यूडी था तो रास्ता के किनारे ड्रेन हर समय सफा रहता था, ग्रास बड़ा नहीं होता। 9 बजे चाय बनाकर शुरू करते थे काम, लेकिन फिर भी काम होता था। अभी आप देखो ड्रेनेज वाली बहुत पूरे देश की समस्या है। ड्रेनेज इज अ प्रॉब्लम एवरीवेयर, बिकॉज जो पहले ड्रेनेज बोर्ड था, इरिगेशन वो सब वो खत्म हो गया, वाटरवेज मिनिस्ट्री आया। तो वी आर लुकिंग एट सम ऑफ दोज इश्यूज, यू नो हाउ द एलोकेशंस विल बी मेड इन द बजट। इसके बारे में हम लोग बारीकी से सोच रहे हैं कि बजट में कौन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर, शुगर, जो वाटरवेज है, ड्रेनेज, क्योंकि रास्ते के लिए भी और फार्म के लिए भी। अभी कल मुझे लोग बता रहे थे रकेती में जो इरिगेशन स्कीम है वहाँ ड्रेनेज लगभग खत्म हो गया, उसको सफा करना है। तो ये जो स्पेसिफिक समस्या है सुनील, आई थिंक यू शुड work it out and maybe raise it with the Ministry of Waterways and how we can fix it. If that project is dead and the farms are not productive, then we should be able to change that. कहीं नेक्सस रोड ला पहले जैसे देता गैंग के पैसा अपने गैंग कॉन्ट्रैक्ट वालों को बना लेता ना, तो अभी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दे ना, क्यों नहीं आप लोग फिर वही रकम कर दे सीधा जो पैसा गैंग के दे दे, गैंग अपना रास्ता अपने बना लेगा, अच्छा अपने बना लेगा। अच्छा सुझाव है और अच्छा बनाएगा अपन मन के। आई थिंक अच्छा सुझाव है। मैं बताऊं, ये मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी तक यही था कि लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। सब ऊपर से आता था, ये करो वो करो। जैसे आपने कहा, ये सही कहा, अगर पैसा कमिटी अगर होता, ग्रोवर्स काउंसिल होता, सेक्टर में तो थोड़े पैसा में पहले जैसे 1/3 2/3 था, किसान भी तैयार है पैसा खर्चा करने के लिए छोटा मोटा, अगर हो सके तो इस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। बहुत साल हो गए हम लोग जो कॉर्बेज अलाउंस के पीछे दौड़ता है, बिकॉज हमारे नज़र में लगभग 10 साल हो गए जो गाड़ी का प्रॉब्लम हम लोग के है। सीजन स्टार्ट हुए, गाड़ी 2-4 रोज मिली, 1-2 हफ्ता और मिली, फिर गाड़ी हफ्ता में खाली 2 रोज आवे। अगर सोमवार की गाड़ी आई तो गाड़ी सूख के आई। फिर लोग साहब बता दी सोमवार की गाड़ी यहाँ बांट दी कुल सरदार के कि तुम्हारे 10, तुम्हारे 2, तुम्हारे 3, लेकिन गाड़ी आई नहीं, वो गाड़ी सूख के पहुंची यहाँ, वो ट्रेन हुए गए और गाड़ी कमती हुए गए। उसके कारण हम लोग बहुत रोज से ट्राई करते करते लास्ट ईयर हम लोग का कन्वेंशन शुरू से ओपन रहा, बिकॉज मिल बंद में हम लोग काफी वार्तालाप करा एफएससी संगे, शुरू में खुल गए। हम सुनील से जाने मन था लास्ट ईयर कन्वेंशन अलाउंस आप लोग खोला रहा, कितना पैसा लगा? कन्वेंशन खाली बात करता हम, कितना टोटल अमाउंट लगा रहा? I do not have those figures because those figures are with FSC, right? For this year, we have done from our side, from Sugarcane Growers Council, we have made our proposal to FSC. Unfortunately, the manager harvesting and transport operations is not here. I think he has gone down to Lambasa because of some commitments. So he has given us some assurance that they will start considering this from the beginning of the season. I'm not here just to since Minister is here trying to please you, but this is something that we have already started communication with, and sir, this has been lacking in the past. We have been putting requests on behalf of the growers, and things did not eventuate till the very
towards the end of the season when wet season set in, and growers had to incur additional cost. But this year we have requested them, and they have given us some assurance. But definitely we will follow up on that. ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता था कि गन्ने की जो समस्या है मुझे बहुत हद तक पता है कि क्या, जैसे मैंने कहा बजट में हम अभी शुगर इंडस्ट्री का जो बजट है उसको बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। शुगर मंत्री से भी हमारी बात हो रही है और हम ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। अभी 5 महीने हुआ हमें गवर्नमेंट में, तो ये बजट में हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर जो खास और विशेष समस्या है जो किसानों के लिए एक रुकावट बन रही है, उसको हम कोशिश करेंगे सुलझाने के लिए। और अगले 6 महीनों में हम जो अन्य विषय है उस पर बात करेंगे कि कैसे किसानों को एक बार फिर ये निर्णय में शामिल किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मुझे लग रहा है कि किसानों की जो आवाज़ है वो कम है, क्योंकि जो सिस्टम हो गया था ना, तो आवाज़ आप लोगों का जब सही जगह पर रहेगा, सही लोग जाएंगे, तो ये हो सकता है। क्योंकि सरकार को ये बात सुनना पड़ेगा, एफएससी को ये बात सुनना पड़ेगा, मंत्री को ये बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि समस्या पिछले 10-12 वर्षों में बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। एफएससी के पास भी पैसा नहीं है। सरकार अगर नहीं पैसा दे तो एफएससी खलास, ग्रोवर्स काउंसिल को हम पैसा दे रहे हैं। तो ये सब था, किसान उसमें, किसानों को केवल ये था कि आप गन्ना बो, गन्ना काटो, कैसे क्या समस्या है उस पर कम ध्यान दिया जा रहा था। इसलिए ये लोगों की समस्या नहीं जो काम कर रहे हैं, ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा था। उस सिस्टम को हम फिर से चलाएंगे। दूसरा बात ये है कि गन्ने की समस्या तो है, तो बजट में और भी जो विषय है, अगर कुछ अन्य विषय है जिस पर आप लोग, अब जैसे हम लोग जब सरकार में आए तो पहला चीज़ हमने देखा कि स्कूल खुलने वाला है, लोगों की समस्या थी, तो $50 मिलियन मैंने अलग किया, और जितने बच्चे थे प्री स्कूल से लेकर और होम 7 तक, उनको हमने $200 प्रति बच्चा दिया ताकि स्कूल खुलने से समय लोगों को सहूलियत मिले। और ये जो सब बकवास लोग कर रहे थे कि सोशल वेलफेयर चला जाएगा, ये नहीं मिलेगा, स्कूल फीस हट जाएगा, ये सब गलत है, ये बकवास है। इसको और हम सुधारेंगे। अभी बजट में आप लोग देखेंगे कि ये सही तरीके से हम देंगे, ताकि जो लोगों को, अब जैसे हमारे जो बूढ़े लोग हैं जो 70 से ऊपर हैं, उनको भी केवल $100 मिल रहा है। क्या उनको ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी हम देख रहे हैं। तो अलग अलग जो विषय था, मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूं कि ये जो अफवाहें, गलत अफवाहें जो चल रही है, ये बकवास है, क्योंकि हमें भी पता है कि समस्या क्या है। तो इस पर अगर जो अन्य समस्या है उस पर अगर आप लोग बात करना चाहते हैं, बस फेयर सब्सिडी जो था उसको हमने 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया, उसमें लगभग $7-8 मिलियन और हमने अलग किया ताकि वो स्कीम चलता रहे। तो कोई भी सरकार ये नहीं करेगा कि लोगों को जो मिल रहा है वो छीन ले, यही तो अफवाह रहा था। हाँ। तो मैं आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो गलत है, ये सब अफवाहों से आप दूर रहिए। ठीक है भाई। नहीं देखो, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। हाँ नहीं, वेट की बात है,
देखो पहले वाली सरकार 2011 से 2015 तक 15% बेट था। 9% बतावा जाता नहीं नहीं 15% बेट था वो उस समय। और वो किसके नीचे हुआ था? पहले वाली सरकार के नीचे। फिर कम हुआ कोविड के समय, फिर 0 बेट जो खाने पीने वाली चीज़ है उस पर हुआ। फिर 2 रेट था, 9% और 15%। अभी भी है, 15% है, 9% है, 0% है। तो देश के ऊपर कर्जा भी बहुत लग गया है। और जब कर्जा बढ़ता है तो जैसे आपने कहा कि एंड में वो आप लोग के ऊपर आता है। बिजनेसमैन नहीं कर्जा भरता है, बिजनेसमैन भी टैक्स भरता है, आप लोग भी टैक्स भरते हो। सौदा जाकर जब खरीदते हो तो टैक्स भरते हो। तो सरकार चलाने के लिए अब गन्ने के एफएससी को पैसा देने के लिए, ड्रेनेज के पैसा देने के लिए पैसा जरूरत तो है। कर्जा लेते अगर जाओगे वही हुआ है। तो एक जगह काबू तो करना पड़ेगा। तो अभी बजट में हम अच्छी तरह से देख रहे हैं कि कहाँ पर हम टैक्स बढ़ाएं, कंपनी टैक्स बढ़ाएं या वेट थोड़ा बढ़ाएं या क्या करें, ये सब अभी हम देख रहे हैं। ताकि आमदनी भी जरूरत है ना, आमदनी नहीं आएगा तो जो लोगों को सोशल वेलफेयर मिल रहा है, जो ये फ्री स्कूल हो रहा है, बस फेयर सब्सिडी जो है, ये फ्री नहीं आता, पैसा कहीं से लाना पड़ेगा। तो वे जो बजट अभी हम बनाएंगे इसको बहुत ही बारीकी से, जो पैसा हम लेंगे उसको लौटा कर देंगे भी, और ऐसे जगह पर देंगे जहां पर जरूरत है और जहां पर पैसा बर्बाद होता था। अब जैसे फिल्म बनाने के लिए मैं बताऊं एक उदाहरण, जो बाहर से लोग आते हैं फिल्म बनाने के लिए, उनको टैक्स पेयर पैसा उठाकर 400 मिलियन लगभग, आप सोचो थोड़ा देर के लिए, अगर वो 400 मिलियन वहां नहीं जाता, क्या प्रायोरिटी था? लोगों को ओवरसीज से लाकर यहाँ फिल्म बनाओ या गन्ने के किसानों की या रेल या ये सब फिक्स करो या अस्पताल की हालत सुधारो? ये सब हम बंद कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं। वी आर कटिंग डाउन द वेस्टेजेस। तो द बजट विल बी बैलेंस्ड। लोगों की जो समस्या है उसको हम ध्यान में रखेंगे। we'll have a budget which will be looking after the interest of everybody. हमारा नाम लक्ष्मण पिल्ले, 11.91 हम लोग नंबर है। रास्ता क्या है, जब पेट्रोल चले तब वो लोग इतना गहरा गड्ढा कर दिए, तो डोरी गन्ना निकाले तो लोग हम बताया खाने में किस्मत लगा दो। एफएससी बताया तो लोग बोले तुम जाओ वहाँ पीडब्ल्यूडी गया तो लोग बताया लकड़ी काट के गड्ढा में तोड़ दो। जब पानी बरसे तो महीनों में रास्ता हो, और कितना जगह पर ट्रैक्टर से लाए, प्लेन भी है, कितना रास्ता बनाया हूँ जगह जगह ना। तो हम बोलता कि वहाँ किलबट लगा कि गन्ना लोरी निकाले, रास्ता प्रॉब्लम नहीं क्या डेढ़ गन्ना निकले, लगभग 200 टन गन्ना निकले रास्ता, तो रास्ता सब टाइम बना के पड़े। तो कंप्लेन वही कि रास्ता में पानी आ जाए, तो हम उनका वहाँ किलबट लगा दो। तो किलबट भी हम बताया, वो लोग बड़े पेड़ काट के रास्ता में लगा दो मोड़ी में, तो फिर उसके गीची पे पानी भरते रास्ता में पानी आवे। हमारी कंप्लेन है, हम उनका कि बोला कि आप लोग पैसा लगा। What's the problem with the land leases? क्राउन लैंड की ज्यादा है कि अभी जैसे अभी ग्रेट काउंसिल ऑफ चीफ आ गए हैं ना, तो उसमें हम सुना टीएलटीबी के कानून में कुछ बदलाव आया है। सही बात है, जो बिल 17 में था वो हट गया, वैसे है। जैसे अभी से तो मेरा जमीन रिजर्व होगा, तो मेरा घर के एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले ग्रेट काउंसिल चीफ में तभी आया तो कानून काफी बदली हो गया, वो मैं ना जानना। नहीं, कुछ नहीं बदली हुआ, ये भी बकवास लोग कर रहे हैं। ये देश में हमारे लोग कितने दिन से जमीन रिन्यू होता है, कहीं कहीं पर नहीं रिन्यू हुआ, ये भी सही बात है। हाँ, लैंड सही तरीके से निर्णय लिया जाता है। तो टीएलटीबी अब हमारे साथ मिलकर काम करेगा, ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती ये सब होगा। तो लैंड रेंट की समस्या आप कहते थे,
TLTV, any issues here that you want to explain? Nakasa ni bulu nakaha. Just on the Yeah, house site. yeah. Before the lease expired, we have to do our due diligence Yeah. in terms of inspecting Yeah. the subject lease and ensure that the subject lease is fully cultivated. Secondly, the account is clear with the TLTB. And thirdly, before we go and consult the landowners, we have to ensure that the landowners have sufficient land for this, for the existing generation and also for the future generation. And if we see that there's a need for the land to be reverted back to the landowners, we'll ensure that the house site where they're staying, where the house is built, is given a residential lease. But other than that, TLTB will do its best to convince the landowners to renew the agricultural lease. Thank you, sir. भाई साहब क्या बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा लीज ये लोग रिन्यू करते हैं अगर एक्सपायर हो। अगर कहीं ऐसा समस्या है जहां उनको भी थोड़ा जमीन जरूरत है तो वो देखेंगे घर के लीज या उसको कम करेंगे। अगर 50 एकड़ है आपका तो वो तो पहले भी होता था। ये 1950, 60, 70 की अभी जो माहौल है ये 3 पार्टी का सरकार है और इस पर जो जमीन की समस्या है इस पर हम अच्छी तरह से बातचीत करेंगे। अभी पिछले सरकार सेयांगा में जब जमीन एक्सपायर हुआ, मैं पार्लियामेंट में रेज किया था बैनी मलामा जब प्रधानमंत्री था, 50,000 40,000 लीज प्रीमियम रिन्यू करने के लिए। तो मैंने उससे जब सवाल किया कि तुम 16 साल से TLTV के चेयरमैन आप हो, क्या किया? कुछ नहीं हुआ था। तो हमारी सरकार को ये पता है कि we are aware lease is an issue. This is a government which is prepared to look at that. We will have proper consultation and appropriate policies, actions will be taken. तो ये जो लोग बकवास कर रहे हैं कि GCC आ गया, ये हो जाएगा, this is all rumor. This is designed to create fear in the minds of you people. और विशेष करके जो हिंदुस्तानी कौम है, भारतीय कौम है, वहाँ पर लोग जाकर भड़काते हैं। हम लोग यहाँ 140 वर्ष से है। हाँ, समस्या हुआ बीच में, लेकिन समस्या का समाधान भी हुआ है। और ये सरकार जो बनी है, ये हम लोगों को जोड़ रहे हैं, साथ ला रहे हैं, ताकि जो समस्या है उसको हम सुलझा सकें। ये होगा, आप लोग घबराइए मत। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती होगा, जबरदस्ती पहले भी हुआ है, नया बात नहीं है। लेकिन 2-3 बात की आश्वासन मैं आप लोगों को देता हूं। पहला, जो ये बकवास है कि लोगों को जो मिल रहा है, स्कूल फीस, सोशल वेलफेयर, सब्सिडी वगैरह, जो ये पॉवर्टी बेनिफिट स्कीम है, कहते हैं सब चला जाएगा। चुनाव से पहले यही तो कहते थे ना, यही हल्ला था। सरासर झूठ है, बकवास है, एक गंदा तरीका है उन लोगों को जो हर समय ताकत में रहना चाहते हैं। ये कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। पहला चीज हमने किया, पहला महीना में 50 मिलियन अलग किया बच्चों की, $200 सही समय। और फिजी भर में हमें ये पता चला कि पीपल यूज दैट मनी प्रॉपर्ली, दैट $200। पेरेंट्स वेंट, दे बोट। तो वो एक उदाहरण था कि
ये सरकार जनता की देखभाल करेगा? हमें पता है समस्या क्या है। तो आप लोग को मैं आश्वासन देता हूं कि ये सब बकवास में आप फंसिए मत। समय लगेगा, समस्या बहुत बड़ा है, कर्जा देश पर बहुत है, पैसा का दुरुपयोग बहुत हुआ, बहुत, ये हम खुलेआम बोल रहे हैं, बहुत हुआ है। उसको हम रोकेंगे ताकि लोगों की जो समस्या है उसको हम सही तरीके से सुलझा सकें। ओवरनाइट नहीं होगा, कल सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन ये बजट के बाद हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि कैसे इसको सुलझाएंगे। हॉस्पिटल में वीक डेज में तो ठीक रहे, हाँ, वीकेंड में कभी कभी तुम जाओ, आदमी सवेरे का अस्पताल चला के 12 बजे तक वहाँ बैठे, सिंगटोका हॉस्पिटल की बात करता लोग, मैं टाइम डॉक्टर नहीं रहे। और धुआं से चिट्ठी लिख के हम लोग कहते तुम जाओ फार्मेसी से गोली लेके आओ, सुई वहां से लगता हम लोग मारेगा। ये हम लोग मानता है कि बजट में हम लोग के सुधरे। हाँ, ये आपने सही कहा। ये जो आप लोग सुन रहे होंगे कि ये सुनो बात, जो हेल्थ सेक्टर है, वो मैंने बहुत पहले कहा कि फिजी के इतिहास में इतना बुरा हालत अस्पताल का कभी नहीं था जो वर्तमान में है। और पिछले 5 महीनों में हम लोगों ने कई ऐसी निर्णय लिया है और अभी बजट में भी आएगा। मैं गया था वहाँ रकेती, हमारे गांव में हेल्थ सेंटर टूटकर गिर रहा था और परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ कभी पहुंचा नहीं था वहाँ। हमारे जो स्टाफ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में थे, जब वहाँ पहुँचे तो ये देखकर दंग हो गए कि कैसे अस्पताल का हालत इतना बुरा है। तो अभी जाकर उसको पेंट किए, बनाए। अभी आप देखेंगे कि फिजी भर में इस बजट के बाद अस्पताल का जो फिजिकल वो है वो सुधार होगा। कहीं कहीं पर एक्सरे मशीन नहीं चल रहा है, कहीं गोली नहीं है, कहीं दवाई नहीं है। ये पूरे देश की समस्या है। तो इस पर बारीकी से जो हमारे नए मंत्री हैं वो भी डॉक्टर हैं, पहले वाला भी डॉक्टर था, लेकिन जो हालत हो गया था, नंदरोगा वहाँ भीतर ले जाकर अस्पताल बना दिया। कितना लोग वहाँ जा रहे हैं। वो पैसा अगर लगाकर सिंगटोका हॉस्पिटल, ये जो हेल्थ सेंटर है, इसको अगर सुधारते, नर्स डॉक्टर गोली दवाई अगर वहाँ होता तो ज़्यादा लोगों से वहाँ एक एम्बुलेंस रख देते, अगर कोई इमरजेंसी है यहाँ आ जा। अस्पताल बना दिया वहाँ। तो अलग अलग विषय, और मैं मानता हूँ कि अस्पताल की जो समस्या है तो सुधार होगा उसमें। ये मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ कि समय लगेगा। अभी भारत सरकार ने ये घोषणा की है, ये बहुत बड़ी बात है। 100 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू में बनाएंगे। अभी प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी गए थे, सुने होंगे आप लोग न्यूज़ में। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये ऐलान किया कि और वहाँ से वो लोग बनाएंगे और वहाँ से लोग आएंगे। They will build a 100-bed super specialty hospital. It will be staffed by people from India, equipment और सब, they will run it for a while। कि यहाँ पे अभी लोग अगर हार्ट होता है, कहते थे लोटोका में हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब समस्या है। तो सरकार हमारी पूरी लगी हुई है। ये बहुत बड़ी बात जो ये घोषणा हुई है। हाँ, that's a big one। तो मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग थोड़ा शांति रखिए, हिम्मत बांधिए। ये बड़ी बड़ी जो समस्या है इसको हम सुलझाएंगे। लास्ट हमारा मांग है, पहले हम लोग के पुलिस पोस्ट पे एक एम्बुलेंस रहता था। हाँ, बहुत बड़ा जगह है। हाँ। कभी कभी ट्रांसपोर्ट नहीं रहे, आदमी नहीं रहे, एम्बुलेंस हम लोग की जरूरी है ना। पुलिस पोस्ट पे एम्बुलेंस जरूरी है। पुलिस को कोई हाँ, जगह है, हाँ।
ठीक। आदमी की सुविधा लेके जाएगी। ठीक है, मैं वादा कर रहा हूँ कि कल हो जाएगा, लेकिन उसको हम ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, कई ऐसी समस्याओं को हम सुलझाएंगे। एक चीज आप पूछ रहे थे, हम लोग पता नहीं वीकेंड के स्टैंड बाय देखता है या नहीं, एकदम जैसे कोई नहीं रहता वीकेंड में। रहता है, कोई बोलता है कि जाओ सिंगोटका जाओ, कभी कोई रहता, कोई नहीं रहता, रहता कभी नहीं, और कंपल्सरी नहीं है, बोलता है तलब नहीं मिलता हम लोग के। समस्या थोड़ा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे नेसेस यहाँ से जा रहे हैं, और तो उस पर भी हम बारीकी से भी देख रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि बजट में हम कुछ अनाउंस करेंगे जो नेसेस को सपोर्ट करने वाला, जैसे नेसिंग एड, जो अभी नेस कम है तो उनको सब काम करना पड़ता है, तो उसके साथ अगर और दूसरा लेवल पर हम लोगों को लाते हैं जो अस्पताल में जो वैसा काम कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, बेड ठीक कर सकते हैं, तो नेस को ज़्यादा समय मिलेगा, उनके ऊपर इतना बोझा नहीं होगा। क्योंकि एक और चीज़ हो गया है कि कम नेस है, the level of work that they do, and I thank all the people who are working in the hospital, doctors, nurses, they are working long hours, 12 घंटा काम करते हैं। 12 घंटा करने के बाद 8-10 घंटा अगर कंटिन्यूअस आप काम करो तो ये कितना ही, लेकिन ये बेचारे कर रहे हैं, तो उनको हम शाबाशी दे रहे हैं। और इस बजट में हम देखते हैं कि कैसे उसको हम सुलझाएंगे, उनको सपोर्ट देंगे, ताकि वो उनको भी लगे कि वो सही तरीके से सही समय पर काम कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जो विषय है, इसको ये जब सिस्टम में चलने लगेगा, सिस्टम खत्म हो गया था, सबसे बड़ी बात तो यही है, तो सिस्टम को भी हम राइट कर रहे हैं। अस्पताल में जो पैसा जा रहा था बजट में, वो it was not the money, the amount of money that was going to the Ministry of Health was appropriate, उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो काम होना था वो नहीं हो रहा था, that's what was happening। तो उसको भी हम ठीक करेंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों को विशेष, आप इतने भाई जी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं, ये तो बड़ी तादाद में आप लोग आ गए, और ये मैं इसलिए करना चाहता था क्योंकि जो समिट हुआ था वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, हमें समस्याओं के बारे में पता है। मैं ऑपोजिशन में था 8 साल, समस्याओं के आई वाज देयर एंड आई नो क्या हुआ था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि, और मुझे यहाँ आने से बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों की जो समस्या है वो मुझे पता चला, और आप लोगों को मैं आश्वासन देता हूँ कि आप घबराइए नहीं, ये जो अलग अलग तरह के अफवाह है इससे दूर होइए, सही होगा सब। तो मिनिस्टर साहब, मैं इतना कहना चाहूँगा ज़रूर आपको कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, आज नहीं तो कल, ये विश्वास हम रखते हैं। दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ, अफवाह की बात बहुत हो चुकी, जब तक होगा नहीं तब तक हम उसका यकीन नहीं करें। तीसरी बात, जो ये हम बहुत जल्दी से शिकायत ला देते हैं कि ग्रोस काउंसिल आता नहीं, ये नहीं होने, अब लगभग लोमवाई से लेकर ओलसारा तक, नंडाला तक 600 किसान होंगे, तो बाप बेटे को कहता है वो उसी से वो नहीं जाता है, तो 600 आदमी को संभालना करीब का बात है। और आप सभी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके मैं अरुण को धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि 17 तारीख का मीटिंग का उन्होंने हम किसानों का कुछ रिक्वेस्ट को माना था। रोसिल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि फ़ोन करने पर वो आता था। तो मैं इस बात को ग्रोस काउंसिल को मैं कहता हूं कि मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत व्यस्त रहते हो। मैं कह चुका हूं कि पिता भेजता है बेटा को कि यार लेकर जल्दी आ जाना, वो शाम कर देता है, तो 600 किसान में समय लगेगा। तो आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिनिस्टर जी, आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि नेता जल्दी पहुंचते नहीं है, लेकिन धन्यवाद है आपका। धन्यवाद हम किसानों की ओर से आप सभी को धन्यवाद।